Hi everyone. Today we are going to study about nerve conduction and neurotransmitters. This video can be important for students who are in their graduations with botany and zoology, whereas students doing their post graduation in zoology. So it can be a written notes important for your exam point of view. This syllabus that I'm going to prepare the videos with are concerned with the syllabus of Professor Raju Bhaiya University, Allahabad University. So here we go. The topic is nerve conduction and neurotransmitters. So for the introductions, nerve conductions and neurotransmitters are essential for understanding how the nervous system transmits signals. So इसमें ये बोल रहा है कि नर्व कंडक्शन और न्यूरोट्रांसमीटर से हम ये समझते हैं कि जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है, जो ये नर्वस सिस्टम हमारा होता है वो कैसे हेल्प करता है हमारी बॉडी में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए. These signals allows us to sense, think, move and respond to our environment. तो यही सिग्नल से ही हम सेंस करते हैं. जैसे कि एक हॉट बर्तन पे आप अपना हाथ रखते हैं तो कैसे वो सेंस करके ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाता है और ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स को एडवाइस देती है कि कैसे अपना हाथ वहाँ से वापस ले ले. तो बेसिकली सेंस करता है, फिर थिंक करता है और फिर मूव करने के लिए कमांड भी करता है और रिस्पॉन्ड भी करता है अलग अलग तरीक़ों से. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नर्व कंडक्शंस. Nerve conduction refers to the process by which electrical signals known as action potentials travel along neurons to transmit information. So basically जैसे कि ये न्यूरॉन्स है, ये हो गया साइटॉन और इसके किनारे किनारे हो गया डेंड्राइट्स लगे रहेंगे. ओके, तो और ये हो गया एक्सॉन और ये हो गया सेल बॉडी या साइटॉन. सेल बॉडी, oh it is not visible in the video, wait a minute, okay here you go. तो ये साइटॉन है, सेल बॉडी या फिर इसको साइटॉन भी कहते हैं. और ये हो गया एक्सॉन और ये हो गए डेंड्राइट्स. ओके, तो इसके डेंड्राइट से यहाँ पर भी डेंड्राइट्स निकले हुए रहते हैं. तो इसका डेंड्राइट्स किसी और न्यूरॉन्स के सेल बॉडी यानी यहाँ वाले पार्ट से जुड़ा रहेगा. जैसे कि ये इसका डेंड्राइट हो गया और यहाँ पर इसका सेल बॉडी और नीचे उसका एक्सॉन हो गया. ओके, तो ऐसे करते करते ये पूरी बॉडी में हमारे फैले रहते हैं. तो बेसिकली नर्व कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जो कि हमको बताता है कि जो ये नर्व है, न्यूरॉन सेल है, इसके अंदर कैसे सिग्नल पास होता है. मतलब यहाँ से यहाँ कैसे आता है, यहाँ से यहाँ कैसे आता है, और which results in how this nerve signal transmits from this to another neuron cell. Okay, so this process relies on specific changes in the electrical charge across the neuron's membrane and is critical for communication within the nervous system. तो जैसे ही नर्व सिग्नल, इसमें नर्व इम्पल्स या फिर सिग्नल कह सकते हैं, एक न्यूरॉन रिसीव करता है, तो रिसीव करने के बाद क्या चेंजेस होती हैं इसकी सेल्स में, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. और वो कैसे आगे बढ़ता जाता है ये हम पढ़ेंगे नर्व कंडक्शन में. तो हाउ नर्व कंडक्शन वर्क्स. सबसे पहले आता है रेस्टिंग पोटेंशियल. In its resting state, a neuron has slightly negative charge inside compared to the outside. This is called the resting potential. The neuron remains at rest until it receives a signal strong enough to start an action potential. So, as you can see, yep, as you can see in this diagram,
that this is nerve cell. Okay, this is the axon part that I drew earlier. This was the cell body and this was the axon. Drawing is little bit awful. Okay, so this part is drawn here. So axon, this is axon. So what it is saying that when a neuron is simply placed or simply being itself, the negative charge, that means it's resting. Okay, resting in the sense that it hasn't received any signal yet. ओके, इसने अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं लिया है, इसलिए अभी वो रेस्ट कर रहा है. तो रेस्ट की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमेशा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अंदर के साइड रहता है और बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज रहता है. ठीक है, ये इसका रेस्टिंग है, मतलब अभी एकदम आराम कर रहा है, इसको कोई भी काम करने के लिए नहीं बोला गया है. ठीक है, once again we will read this. In its resting state, a neuron has a slightly negative charge in the inside compared to the outside. इसमें लिखा है slightly negative charge, मतलब कि बाहर की कंपैरिजन में अंदर के साइड में ज़्यादा चार्ज होते हैं. ओके, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होते हैं इन कंपैरिजन टू आउटसाइड. इसको क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल. द न्यूरॉन रिमेन्स एट रेस्ट. और ये न्यूरॉन्स रेस्ट में तब तक रहते हैं जब तक इनको एक स्ट्रॉन्ग नर्व सिग्नल नहीं मिल जाता है. what I mean is sometimes there are signals, right? Just like you are okay, here's the example. जैसे कि कोई पिन आप चुभा रहे हैं अपने आप को, like it is blunt and it is not so pointed, just like this pen. okay, तो इतना इतना हम ऐसा चुभा रहे हैं तो इतना हम बियर कर सकते हैं पेन को, राइट? इतना इसमें इतने दर्द की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको ऐसे तुरंत हटा लें, क्योंकि हम ये बियर नहीं कर पा रहे हैं. ओके, जैसे कि एक तवा हो गया, वो एकदम गर्म है, उस पर ले जा कर के हमने अपनी फिंगर रखी और वो तो गर्म होता है, तो हम उस पर ज़्यादा देर तक तो ऐसे करके रख नहीं सकते हैं ना, तो हम तुरंत हटा लेते हैं. तो दैट level of strong we need to start the nerve conduction. समझ रहे हैं आप कि मतलब वो नर्व कंडक्शन स्टार्ट करने के लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नर्व सिग्नल्स, मतलब नर्व सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नर्व कंडक्शन को स्टार्ट कर सके. हर टाइप का स्टिमुलस, ऐसा सिंपल सभी स्टिमुलस, हर टाइप का स्टिमुलस नर्व कंडक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द न्यूरॉन्स रिमेन एट रेस्ट अंटिल इट रिसीव्स द सिग्नल स्ट्रॉन्ग इनफ. कैन यू सी दैट? स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टार्ट एन एक्शन पोटेंशियल. So moving on to the next one, that is action potential. When a neuron receives a signal, ions, that is charged particles, as you know, any particle is considered ion when it gets charged with plus or minus sign, start moving across its membrane, generating an electrical charge known as action potential. This movement happens in stages. Okay, सो अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि व्हेन अ न्यूरॉन रिसीव्स अ सिग्नल, ये हमारा एक्सॉन था और ये हमारा वही एक्सॉन है. यहाँ पर ये रेस्टिंग स्टेट में था और अब इसको सिग्नल मिल चुका है. ओके, तो ये रहा हमारा सिग्नल. और अब इस सिग्नल के मिलने के बाद इसका ये जो माइनस चार्ज अंदर के साइड था, बाहर के साइड पॉजिटिव चार्ज था, ये सब में बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे. तो अब हम वो पढ़ेंगे कि इसमें क्या इलेक्ट्रिकल चेंजेस आ रहे हैं. तो व्हेन अ न्यूरॉन रिसीव्स अ सिग्नल, आयंस लाइक दीज स्टार्ट मूविंग अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन. मतलब जैसे ही ये सिग्नल मिलेगा तो अंदर या बाहर के साइड में
जो आयंस होंगे, जैसे कि बाहर के साइड में NaCl हो गया, मतलब सोडियम और क्लोराइड हो गया, अंदर के साइड में पोटेशियम और कैल्शियम, ये सब हो गए। तो ये सब इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, ये एक्सोलेमा, द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज़ नोन एज एक्सोलेमा, जस्ट लाइक प्लाज्मा लेमा होती है ना, उसी तरीके से इसकी जो मतलब हमारी जो सेल्स होती हैं एनिमल सेल्स, उसके जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं। उसी तरीके से जो एक्सॉन नर्व सेल्स होती हैं उनकी जो हम मेम्ब्रेन होती है एक्सॉन की, उसको एक्सोलेमा कहते हैं। तो इस मेम्ब्रेन से इधर उधर अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो जो आयन होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ अंदर आते हैं कुछ बाहर जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिग्नल। ओके, तो यहाँ लिखा ही हुआ है आयंस स्टार्ट मूविंग अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। दिस मूवमेंट हैपन्स इन स्टेजेस। तो ये स्टेजेस में होता है ये मूवमेंट। तो वो स्टेजेस में हम पढ़ेंगे। डीपोलराइजेशन सबसे पहले है। ड्यूरिंग दिस फेज सोडियम आयन रश इन टू द न्यूरॉन। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग दैट इज़ टू बी नोटेड इज़, जो सबसे पहला आयन होता है वो है सोडियम आयन। और मैंने जैसे बताया ना, बाहर की साइड में सोडियम और क्लोराइड या कैल्शियम आयंस होते हैं, वो अंदर की साइड आएंगे। तो ड्यूरिंग दिस फेज सोडियम आयन रशेस इन टू द न्यूरॉन एंड एज यू नो सोडियम हैज़ पॉजिटिव चार्ज, राइट, मेकिंग द इनसाइड मोर पॉजिटिव। तो अपने साथ साथ अपना चार्ज भी तो लाएगा ना अंदर। तो अभी तक तो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस थे, तो अभी जब सोडियम भाई अंदर आएंगे तो इसके साथ सारे पॉजिटिव चार्ज भी आएंगे। तो जितनी दूर में नेगेटिव चार्ज था वहाँ का चार्ज बदल करके पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सारा यहाँ नेगेटिव है। मतलब ये नर्व सिग्नल यहाँ पर है, तो यहाँ के जो चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। दिस रैपिड चेंज फ्रॉम अ नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज inside the neuron is the beginning of the action potential. ओके, तो इसमें ये बोल रहा है कि ये जो रैपिड चेंज आ रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड में, ये हमें दिखाता है कि शुरुआत हो चुकी है एक्शन पोटेंशियल की, नर्व कंडक्शन की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आता है रीपोलराइजेशन। After the neuron becomes positive inside, potassium ion K plus flows outside, bringing the charge back to a negative state. This process is known as repolarization. तो एक हमारा आयन अंदर आया, सोडियम आयन, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कर दिया। ओके, तो उस चीज़ को कहेंगे डिपोलराइजेशन। और फिर एक प्रोसेस होगी रीपोलराइजेशन, जहाँ पर हमारे एक्सोलेमा के अंदर पोटेशियम आयन था, अब वो बाहर के साइड जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव बाहर लेकर के चला गया कुछ। तो हमारा जो अंदर का साइड होगा एक्सोलेमा के, ये जो एक्सोलेमा है मेम्ब्रेन के अंदर का जो साइड होगा वो वापस से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव से वापस से नेगेटिव होना, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज repolarization. This process known as repolarization helps reset the neuron for the next action potential. तो जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे वापस से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सोलेमा, ठीक है। अभी ये सारा का सारा नेगेटिव है क्योंकि अभी ये रेस्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर इसको एक सिग्नल मिला, तो नर्व विल बी लाइक अब हमको काम करना पड़ेगा। तो नर्व सिग्नल यहाँ पर पहुँचा, इसकी वजह से इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं एक्सोलेमा की, इसमें चेंजेस होने शुरू होंगे। चेंजेस क्या होंगे कि ये परमिएबल हो जाएगी। परमिएबल यानी कि ये अलाउ करने लगेगी, अपने चैनल प्रोटीन्स ऐसा खोल देगी कि बाहर के जो आयंस है वो अंदर आ सके और अंदर के आयंस जो हैं वो बाहर जा सकें, इसको स्टिमुलेट कर देगी। तो जब ये अपना ये चैनल प्रोटीन गेट जो भी है इसका ये खोल देगी, तो जो बाहर के आयंस होंगे वो अंदर आने लगेंगे। तो आयंस कौन से अंदर आए हैं? सोडियम आयन अंदर आए हैं।
सोडियम आयन के अंदर आने की वजह से अंदर जो रेस्ट करते वक्त इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था वो सारे सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट इसके जो चैनल गेट होते हैं ये खुल जाते हैं बाहर की और अंदर के आयंस का आने जाने के लिए। तो सबसे पहले सोडियम आयन अंदर आता है और यहाँ के जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं जितनी दूर में आता है, मतलब सिग्नल यहाँ पर है तो यहाँ थोड़ी दूर तक के जो चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे नेगेटिव से। ओके, फिर उसके बाद दिस प्रोसेस इज नोन एज डीपोलराइजेशन, मीन्स नेगेटिव से नर्व सिग्नल के रिसीव होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो चुका है, मतलब कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज हो गया है। फिर ये नर्व सिग्नल अब आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके लिए अब रास्ता क्लियर है आगे बढ़ने के लिए। ओके, यहाँ तक पहुँच गया ये। तो अब यहाँ तक जब पहुँचा तो यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर और सोडियम आयन अंदर आएगा और पोटेशियम आयन सोडियम आयन अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ के पॉजिटिव होने लगेंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव करके गया है उसको वापस से पहले जैसा तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो नर्व सिग्नल आ रहा है वो तभी आ रहा है जब हमारा जो नर्व सेल है, जो हमारा एक्सोलेमा है, एक्सोप्लाज्म है, जब उसमें अंदर के साइड में नेगेटिव चार्ज है तभी तो आ रहा है ना वो नर्व सिग्नल। और अगर वो पॉजिटिव रहेगा फिर तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी भी नर्व सिग्नल चल रहा है, तो दूसरे को कैसे एंट्री देगा। तो इसको वापस से पहले जैसा करना है, तो उसको वापस से पहले जैसा करने के लिए अंदर से पोटेशियम आयन जो होगा, लेट मी यूज़ द अनदर कलर पेन, इसमें तो दिखेगा नहीं, तो जो अंदर के साइड में पोटेशियम आयन होगा वो बाहर के साइड जाएगा। अंडरस्टूड कि अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये थोड़ा सा बाहर जाएगा, तो अंदर के साइड जो पॉजिटिव चार्ज है उनकी कमी हो जाएगी, तो वापस से सारा अंदर के साइड में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, और जब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो अब ये परफेक्ट है बाकी नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल के लिए, नेक्स्ट न्यूरॉन के नेक्स्ट नर्व सेल को नेक्स्ट सिग्नल को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके आगे का ये हो गया। अब फिर ये वाला सिग्नल यहाँ जाएगा तो इसके आगे वाला पॉजिटिव हो जाएगा और इसके पीछे वाला वापस से पॉजिटिव जो यहाँ पर हुआ था वो वापस से नेगेटिव हो जाएगा। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि वापस से पहले जैसा करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव से वापस से उसको नेगेटिव बना करके रखना है ताकि जो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल है वो भी एक्टिवेट हो सके। Propagation of the action potential. The action potential travels along the axon. मैंने बताया ना ये पूरे एक्सॉन में ऐसा ट्रैवल करता रहता है। Along the axon, the long part of the neuron is known as axon in a wave-like manner. ये इसमें वेव की तरह ट्रैवल करता रहता है until it reaches the end of the neuron, और वो तब तक ट्रैवल करता रहता है जब तक वो न्यूरॉन के एंड तक नहीं पहुंच जाता। न्यूरॉन के एंड मतलब कि वो पूरे एक्सॉन में ऐसे लंबा लंबा ट्रैवल करता रहता है और तब तक जब तक ये जो यहाँ पर एंड है सिनेप्सिस के पास तक, इसको सिनेप्सिस कहते हैं एंड, और ये सिनेप्टिक नॉब्स हैं, सिनेप्टिक नॉब्स, और ये सिनेप्सिस हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो तब तक ट्रैवल करता रहता है जब तक इसके एंड तक नहीं आ जाता, और जब एंड में आ जाता है तो जो नेक्स्ट न्यूरॉन होती है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है सिग्नल को नेक्स्ट न्यूरॉन से। ऐसे करते करते ब्रेन के पास पहुँच जाता है, फिर ब्रेन सिग्नल देता है मोटर न्यूरॉन्स को एक्शन लेने के लिए। ओके, in a wave-like manner until it reaches the end of the neuron where it can be passed on to the next cell। जैसे मैंने बताया ना कि इस न्यूरॉन से ट्रांसफ़र होकर के नेक्स्ट सेल में पहुंचने के लिए ऐसे वो पूरा ट्रांसफ़र करता रहेगा।
फिर आती है माइलिन शीथ एंड नोड्स ऑफ रैनवियर. सो लेट मी शो यू दिस इन दिस डायग्राम. ये जो एक्सॉन सेल है, तो इसमें जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं एक्सोलेमा. ओके, एक्सोलेमा. और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरीके से इसमें क्या होता है, एक्सोप्लाज्म. इज दैट क्लियर? तो ये सेल, ये एक्सॉन है. एक्सॉन की मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहेंगे इन द नेम ऑफ प्लाज्मा लेमा. ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं. और अंदर जो मटेरियल और जो फ्लूइड मटेरियल भरा हुआ है, जैसे साइट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा था, वैसे न्यूरॉन सेल के अंदर में एक्सोप्लाज्म भरा रहेगा. ठीक है. तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट माइलिन शीथ, तो ये जो एक्सोलेमा है, ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर एक ऐसे लेयर पाई जाएगी, ऐसे ऐसे लेयर पाई जाएगी. एंड दिस लेयर इज नोन एज माइलिन शीथ. ये एक शीथ की तरह, चादर की तरह इसको ऊपर ऐसे इसको कवर की रहती है. तो इसको कहते हैं हम माइलिन शीथ. माइलिन शीथ. और एज यू कैन सी, जैसे यहाँ पर बीच बीच में गड्ढा दिखाई दे रहा है ना, इसको नोड्स कहेंगे. एंड दिस इज नोन एज नोड्स ऑफ रैनवियर. ओके, ये हो गई माइलिन शीथ और ये हो गई नोड्स ऑफ रैनवियर. तो ये भी हेल्प करती हैं नर्व को ट्रांसमिट कराने में, नर्व कंडक्शन में हेल्प करती हैं. तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे myelin sheath and nodes of Ranvier. Some neurons are covered in a fatty layer called the myelin sheath which acts as insulation. तो ये एक फैटी लेयर की तरह होती हैं, चढ़ी रहती हैं, जो एक्सोप्लाज्म है, एक्सोलेमा है, जो उसके ऊपर चढ़ी रहती हैं, एक फैटी लेयर होती हैं और ये इंसुलेशन का काम करती हैं. ये चीज़ हमको याद रखने वाली है कि जो माइलिन शीथ होती है वो इंसुलेशन का काम करती है, ताकि जो अंदर चार्जेस हैं वो अंदर के साइड ही रहें, बाहर साइड ना जाए. दिस हेल्प्स द सिग्नल मूव फास्टर बाय जंपिंग बिटवीन द गैप्स इन द माइलिन called nodes of Ranvier. This jumping process called saltatory conduction allows signals to reach their destination more quickly. Okay, so एक नेक्स्ट बात ये आती है कि अंदर अंदर तो नर्व सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था. ठीक है, ये एक्सोप्लाज्म के अंदर अंदर तो ट्रांसफ़र कर रहा है, ये नॉर्मल मेथड है. बट एक और मेथड होता है जहाँ पर ये जो माइलिन शीथ है, इसके थ्रू नर्व कंडक्शन होता है. व्हाट आई मीन इज़, ये जो ये नोड्स ऑफ रैनवियर है ना, यहाँ से ऐसा जंप करके इस वाले नोड पे आ जाएगा, ऐसा जंप करके इस वाले नोड पे आ जाएगा. तो जंप कर रहा है, तो जंप करेगा तो जल्दी पहुँचेगा ना. जैसे आप ऐसे चल चल के धीरे धीरे कहीं जा रहे होते हो तो आप लेट पहुँचते हो, राइट. अगर आप ऐसे 1 2 3 ऐसे जंपिंग वाले हम गेम्स खेलते हैं तो हम जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं. तो जल्दी जल्दी अगर जो नर्व सिग्नल है वो यहाँ से जंप करेगा, यहाँ से जंप करेगा, यहाँ से जंप करेगा, तो फटाक से यहाँ एंड पे पहुँच जाएगा. और यहाँ धीरे 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 अंदर आएगा तो उसको टाइम लगेगा. तो ये जो जंपिंग होती है उससे नर्व कंडक्शन फास्टर होता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन. ओके, तो व्हाट इज साल्टेटरी कंडक्शन? व्हेन द signal move faster by jumping between the gaps in the myelin sheath called nodes of Ranvier. myelin sheath के बीच में जो gaps होते हैं उनके थ्रू, जब myelin sheath के थ्रू, it wasn't clear on the screen. तो what is saltatory conduction? The signals move faster by jumping between the gaps in the myelin sheath called nodes of Ranvier. ये जो गैप्स होते हैं माइलिन शीथ में, उनके थ्रू ऐसे जंप करते हुए जाने को ही कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन. और ये क्या करता है, इट अलाउज सिग्नल्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन मोर क्विकली. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरोट्रांसमीटर.
Once the action potential reaches the end of the neuron, it triggers the release of neurotransmitters, which are chemical messengers. These chemicals across the tiny gap synapse between the neuron, enabling communication between them. Okay, so let me first clear one thing about these two topics, that is nerve conduction and neurotransmitters. Okay, तो यहीं पे मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आगे मैं पढ़ाऊँ तो समझने में आसानी हो। जैसे कि यहाँ पर, इज दैट विजिबल इन द डायग्राम? ओके, इट इज़। सो जैसे कि ये पूरा नर्व सेल है, ठीक है, यहाँ से ले कर के यहाँ तक मैंने आपको बताया ना अभी डायग्राम में सब कुछ, कि ये हो गई हमारी सेल बॉडी यानी कि साइटॉन, ये उसका न्यूक्लियस है नर्व सेल का। और ये हो गया हमारा एक्सोलेमा, एक्सोप्लाज्म के साथ एक्सॉन। ओके, लिख दूँ एक्सॉन, ये हो गया साइटॉन, और यहाँ है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू हुआ था जब, और यहाँ पर इससे पूरा ट्रैवल करते हुए यहाँ एंड तक पहुँचा था। तो conduction of transmission of nerve signal from across the nerve cell is known as nerve conduction, and एक सेल से दूसरी सेल में सिग्नल का ट्रांसमिशन इज नोन एज न्यूरो ट्रांसमिशन। ओके, तो ये न्यूरो ट्रांसमिशन किस वजह से होता है, किसके कारण होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ किए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं यहाँ इस वाली सेल से इस वाली सेल के बीच में सिग्नल को ऐसा पास कराने के लिए। जैसे कि समझ लीजिए बीच में कोई नदी है एंड कोई गार्जियन है, वो हाथ पकड़ करके आपका इस पार से इस पार पहुंचाने में हेल्प करता है ना। इन द सेम वे यहाँ से कुछ रिलीज़ किए जाएंगे कुछ केमिकल्स जो कि यहाँ से उठाएंगे सिग्नल को और यहाँ तक पहुँचाएंगे। उसके बाद यही इसी जो गैप है सिनेप्सिस है इसी में विलीन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। कोई भी दो सेल जो होती है, कोई भी दो सेल, सिर्फ नर्व सेल नहीं, कोई भी दो सेल अगर वो इतना पास आ जाती हैं कि उनके बीच में 200 एंगस्ट्रॉम का गैप सिर्फ बचता है, लाइक इतना पास आ जाती हैं कि उनके बीच में सिर्फ 200 एंगस्ट्रॉम का गैप बचता है, देन दैट गैप इज़ कॉल्ड सिनेप्सिस। ओके, तो ये जो नर्व सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के इतना पास आ जाती हैं कि सिनेप्सिस बन जाता है बीच में। तो यहीं पर सिनेप्सिस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर नॉब्स पाई जाती हैं विच आर नोन एज सिनेप्टिक नॉब्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ द प्रीवियस सेल। ओके, सो अब यहाँ से यहाँ पर कैसे आएगा, ये इतना प्रोसेस हमको पढ़ना है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज न्यूरोट्रांसमिशन। ओके, सो हियर इट इज़ कि वंस द एक्शन पोटेंशियल रीचेज द एंड ऑफ द न्यूरॉन, एक बार एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन्स की एंड तक पहुंच जाता है, इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये ट्रिगर करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ करें। मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब न्यूरोट्रांसमीटर्स को बुलाओ ताकि हमको ये दरिया यहाँ से पार करा दे। विच आर केमिकल मैसेंजर्स, वो एक केमिकल होते हैं, मैसेंजर्स यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने वाले जो होते हैं ना, तो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। दीज केमिकल्स क्रॉस द टाइनी गैप, ये टाइनी गैप को क्रॉस करते हैं ये सारे केमिकल्स बिटवीन द न्यूरॉन्स। जो टाइनी गैप न्यूरॉन्स के बीच में है उसको पार करते हैं और इनेबल करते हैं कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में। तो कैसे वर्क करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स हम ये पढ़ेंगे। तो इसको हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन टॉपिक के अंदर भी पढ़ सकते हैं, भी क्या वही पढ़ते हैं, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी ही कहते हैं इसको। तो टॉपिक आता है कि एक्सप्लेन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन,
तो हम यही पढ़ेंगे कि सिनेप्सिस के अंदर कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है नर्व इम्पल्स का। ओके, तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं so that it will be easier for you guys to understand. Is that visible? Okay, now it is. ये हो गया एक सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। और ये सिनेप्टिक नॉब कहाँ प्रेजेंट है? डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट है। और डेंड्राइट्स कहाँ पर है? नर्व सेल्स की एंडिंग्स पे हैं। ये रही डेंड्राइट्स और ये ब्लैक वाला है सिनेप्टिक नॉब। यही डॉट को ही मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये क्या चीज़ मैंने अभी बनाया? कप लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ द रिसेप्टर। रिसेप्टर वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये कुछ रिसीव करने वाला है, राइट। जैसे डोनर जो देने वाला होता है और रिसेप्टर रिसीव करने वाला। तो ये दूसरी सेल है और यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे बना देते हैं गेट के तरीके से। ये रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, ओके। तो हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अब, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ओके, दीज आर वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स, जो कि सिनेप्सिस वाले में, इसमें सिनेप्टिक नॉब में पाई जाती हैं, ओके। यहाँ पर आ गया है कैल्शियम आयंस। तो ये हो गया है डायग्राम। तो हम ये अब समझेंगे कि कैसे यहाँ से इसमें आ रहा है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग ये नीचे जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ तक तो पहुँच गया था ना, ये समझ लीजिए कि ये नर्व की एंडिंग है, राइट। नर्व की एंडिंग है, तो यहाँ से इसके अंदर ये क्या है? सिग्नल है, नर्व सिग्नल, ओके। ये सिग्नल है, नर्व सिग्नल, ये यहाँ पर पहुँच गया है, अंत तक पहुँच गया। अब इसको यहाँ से यहाँ पास करना है। और ये क्या है? ये जो ये दूसरी सेल है, इसके ये जो डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, इनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिसीव करते हैं ये वाले के सिग्नल को, ओके। तो ये उसका रिसेप्टर है, मतलब ये डेंड्राइट है और इसके ऊपर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि अब सिग्नल को रिसीव करने वाले हैं, ओके। आई एम सेइंग टू मच, ओके। तो ये हो गया सिग्नल, यहाँ पे पहुँच गया है। तो जब ये पहुँचेगा ना सिग्नल, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जब भी सिग्नल एंटर करता है नर्व सेल में या एक्सोप्लाज्म में, तो उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें चेंजेस होने लगते हैं, वो परमिएबल हो जाती हैं, इस टाइप की चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी एकदम सेम चीज़ होगी। जैसे ही इसको नर्व सिग्नल मिलेगा, इसकी जो मेम्ब्रेन होंगी वो परमिएबल हो जाएंगी। परमिएबल मतलब कि खुल जाएंगी अंदर आने के लिए। अब किसके अंदर आने के लिए खुलेंगी? वो है कैल्शियम आयन के अंदर आने के लिए। कैल्शियम आयन जो बाहर ऐसे फ्लोट कर रहा होगा, वो अब इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये वॉल्स खुल गई तो कैल्शियम आयन जो बाहर थे वो अंदर आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आएगा, तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स इसमें पाई जा रही हैं, ये स्टिमुलेट हो जाएंगी। कि मतलब ये ट्रिगर, कैल्शियम आयन क्या करता है? ये सिनेप्टिक वेसिकल्स को ट्रिगर करता है। और क्या ट्रिगर करने से क्या होता है कि जब ये सिनेप्टिक वेसिकल्स ट्रिगर होंगी, स्टिमुलेट होंगी, तो ये रिलीज़ करेंगी। क्या रिलीज़ करेंगी? एसिटिल कोलिन रिलीज़ करेंगी। तो ये जो रेड रेड हो गया है अब, ये है एसिटिल कोलिन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने भारी भारी वर्ड्स हैं, एसिटिल कोलिन, इसका क्या काम है? इसका काम कुछ नहीं है, मतलब है पर उतना बड़ा काम नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बस एक हेल्पर की तरह काम करता है। ये नर्व सिग्नल का हाथ पकड़ करके इस पार उसको बस पहुंचाने का काम करता है। तो इट इज़ ऑल्सो
इट इज़ नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब ये नर्व को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। तो मतलब नर्व के ट्रांसमिशन को न्यूरो ट्रांसमिशन कहेंगे, लेकिन जो पार करा रहे हैं उनको भी तो क्रेडिट मिलना चाहिए ना, तो इनको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ओके, तो ये इस पार से इस पार इसको पकड़ करके क्रॉस कराएंगे। तो ये यहाँ पर एसिटिल कोलिन रिलीज़ हो गए हैं, नर्व इम्पल्स यहाँ आ जाएगा और एसिटिल कोलिन नर्व इम्पल्स का हाथ पकड़ करके यहाँ ले आएगा। ठीक है, ये जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब क्या होता है, ऐसे दरार टाइप का होता है ना, स्पेस जो छोटा सा होता है, तो इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, CLEFT। ओके, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और जब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ला करके छोड़ देता है सिग्नल को, तो यहाँ पर पहले से लोग खड़े हुए हैं इंतज़ार में कि आएगा सिग्नल तो हम उसको रिसीव करेंगे। तो ये इस सिग्नल को रिसीव करके यहाँ पर अटैच कर हो जाता है, रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाता है ये। और जो एसिटिल कोलिन आया था सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, अब उसके साथ क्या होगा, ये अब कहीं नहीं जाएगा, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ही इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। मतलब कि एसिटिल कोलिन जो है वो रिलीज़ करता है एसिटिल कोलिन एस्टरेज। तो एसिटिल कोलिन एस्टरेज की वजह से ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और ये नर्व सिग्नल जो है वो इससे रिसीव कर लिया जाता है। तो अब ये जो एसिटिल कोलिन एस्टरेज है इसका नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, एसिटिल कोलिन, बैक टू द प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस पॉइंट्स, एसिटिल कोलिन बस। ओके, एसिटिल कोलिन ने इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ दिया। अब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो नर्व सिग्नल है वो इन रिसेप्टर्स के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, रिसीव कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जिसको जहाँ पहुँचना था वो पहुँच चुका है। अब हम एसिटिल कोलिन की बात करेंगे कि इस बेचारे के साथ क्या होगा। तो एसिटिल कोलिन जो है अभी भी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पड़ा हुआ है। ओके, तो इसको ये इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और इसकी हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, एसिटिल कोलिन एस्टरेज करेगा। एस्टरेज का मतलब एज का मतलब क्या होता है, जैसे लिसिस करने वाला, तोड़ने वाला होता है ना, लाइएज लाइगेज, लाइगेज यानी कि हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो सबको तोड़ने वाला। तो जब हम एज लगा देते हैं मतलब वो तोड़ने की बात हो रही है। तो एसिटिल कोलिन है हमारा, वेट अ मिनट, ये हमारा एसिटिल कोलिन है। ठीक है, अब इसको हम कौन तोड़ेगा, एसिटिल कोलिन एस्टरेज तोड़ेगा। ठीक है, और तोड़ करके क्या बनाएगा, एसीटेट प्लस कोलिन। ठीक है, एसीटेट प्लस कोलिन बनाएगा, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो बस यही पार्ट होता है, यहाँ सीधा हो गया और इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई एसीटेट प्लस कोलिन में। अब हम यहाँ फटाफट पढ़ लेते हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। How neurotransmitters work, release into the synapses. Synapse or synapses. When the action potential arrives, action potential का मतलब यहाँ पर हम in short लिख सकते हैं सिग्नल। अभी पीछे में भी जितना भी जगह एक्शन पोटेंशियल आया है वहाँ का पर भी यही मतलब है, नर्व सिग्नल। तो when the action potential arrives at the end of the neuron, यानी कि एक्सॉन के टर्मिनल में, इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम स्मॉल स्टोरेज यूनिट्स कॉल्ड वेसिकल्स। तो मैंने बताया ना, ये ट्रिगर करेगा वेसिकल्स को कि न्यूरोट्रांसमीटर्स तुम सिक्रीट करो। तो जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं ये रिलीज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इसके एग्जांपल्स हैं ग्लूटामेट, एसिटिल कोलिन, इस टाइप की सब्सटेंस वो रिलीज़ करते हैं जो कि हेल्प करते हैं नर्व सिग्नल को इस पार से इस पार पार कराने के लिए। इनटू वेसिकल्स स्मॉल
called vesicles into the synapse, the small gap between the neurons. मैंने बताया ना जो गैप होता है उसको सिनेप्सिस कहते हैं. बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स, मतलब कैसे बाइंड कर रहे हैं रिसेप्टर से. न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रॉस द सिनेप्स एंड अटैच टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. जो नेक्स्ट न्यूरॉन के सरफेस पे जो रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं उस पर न्यूरोट्रांसमीटर्स अटैच करा देते हैं. दिस बाइंडिंग कैन ईदर एक्साइट और इनहिबिट द न्यूरॉन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. देखो दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. एक होता है इनहिबिटर, मतलब कि अगर वो ऐसा नर्व सिग्नल आया और इनहिबिटर टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर अगर उससे अटैच हो गया तो ये जो अगला वाला नर्व सेल होगा इसमें ट्रांसमिशन नहीं होगा नर्व का, वो वहीं पर रुक जाएगा, उसको इनहिबिट कर देगा, प्रोसेस को वहीं पर रोक देगा. और दूसरे कौन से होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि एक्साइट कर देते हैं नेक्स्ट वाली न्यूरॉन सेल को, नेक्स्ट वाली नर्व सेल को, ताकि आगे के साइड में और ये ट्रांसमिशन की प्रोसेस चलती रहे. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रॉस द सिनेप्स एंड अटैच टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. दिस बाइंडिंग कैन ईदर एक्साइट or inhibit the next neuron depending on the type of neurotransmitter. Types of neurotransmitters: excitatory neurotransmitters. These increase the likelihood that the next neuron will fire an action potential. Glutamate is an example of an excitatory neurotransmitter. मैंने बताया ना कि ये चांसेस बढ़ा देता है कि जो अगला न्यूरॉन होगा वो आगे बढ़ाएगा एक्शन पोटेंशियल को कि नहीं. और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में दे डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन फायरिंग हेल्पिंग टू काम द नर्वस सिस्टम. मतलब वो आगे बढ़ाएगा ही नहीं सिग्नल को और वहीं पे वो ख़त्म कर देगा. इसका एग्जांपल है गाबा, गामा अमीनो बुटायरिक एसिड इज़ अ कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. तो हमको ये याद रखना है कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से होते हैं. रीअपटेक एंड ब्रेक डाउन. आफ्टर न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड to the receptors, they are either reabsorbed by the original neuron in a process called reuptake or broken down by the enzyme. तो यहाँ पर देखो दो बातें बोली गई हैं. मैंने यहाँ पे बताया था कि जो एसिटिल कोलिन होता है उसका एसिटिल कोलिन स्टरेज के साथ की वजह से हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ख़त्म हो जाता है वो सिनेप्सिस में. लेकिन दूसरा चीज़ क्या होता है कि जहाँ से जिस नर्व सेल से जिस न्यूरॉन से वो रिलीज़ किया गया था वापस से वो उसको अपना वापस बुला ले, मतलब कि भाई तुम्हारा काम हो चुका है अब तुम वापस आ जाओ. तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीअपटेक, मतलब वापस ले लिया है. और नेक्स्ट चीज़ होती है ब्रेक डाउन, मतलब कि ख़त्म हो जाता है वो सिनेप्सिस में जा कर के मरा जाता है. तो after neurotransmitters bind to receptors, they are either reabsorbed by the original neuron in a process called reuptake or broken down by the enzymes. This helps clear the synapses for the next signal. देखो जैसे कि आया सारा न्यूरोट्रांसमीटर्स आए सिनेप्सिस में, ठीक है, तो आए और नर्व सिग्नल को इस तरफ पार करा दिए. ओके, अब पार कराने के बाद अगर ये इसी में ऐसा घूमते रहेंगे, फिर नेक्स्ट आएंगे वो भी इसी में घूमते रहेंगे, तो यहाँ पर ऐसा भीड़ लग जाएगी ना, ट्रैफिक टाइप का हो जाएगा. तो हमको ये रास्ता क्लियर रखना है, क्योंकि हमेशा तो यही होता है ना, जैसे कि कोई रोड बहुत भीड़ भाड़ वाली होती है तो आप अवॉइड करते हैं उधर जाना ना, आप जाएंगे ही नहीं. आप सोचेंगे कोई शॉर्टकट मिल जाता है जो खाली रास्ता हो, हम उधर से चले जाएं. तो ऐसा ही नर्व सिग्नल भी है, वो क्यों आना चाहेगा भीड़ भाड़ वाली प्लेस में. तो हमको ये प्लेस क्लियर करनी है, और अगर वो देखेगा क्लियर है तभी तो इस रास्ते आएगा. ठीक है, तो इस रास्ते को बस क्लियर करने के लिए ये दो प्रोसेसेस पाई जाती हैं जिसको हम रीअपटेक और ब्रेक डाउन कहते हैं. रीअपटेक यानी कि वापस ले लिया जाएगा, जिस नर्व से आया था वहाँ वापस चला जाएगा. ब्रेक डाउन यानी कि ख़त्म हो जाएगा, ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम्स. दिस हेल्प्स, ये क्लियर करता है सिनेप्सिस को, ताकि जो नेक्स्ट सिग्नल है वो अंदर आ सके, उसको अलाउ करता है कि नेक्स्ट सिग्नल आ सके और कम्युनिकेशन जो है वो
बनता रहे, अच्छे से चलता रहे कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका अब हम समरी पढ़ेंगे। नर्व कंडक्शन एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स वर्क टुगेदर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। नर्व कंडक्शन जो होते हैं इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मूविंग विद इन न्यूरॉन्स। ये चीज़ हम पॉइंट करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर कैसे ट्रैवल कर रहा है, हम बस उतना पढ़ते हैं नर्व कंडक्शन में। वाइल न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं दे आर केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं दैट कैरी दी सिग्नल्स अक्रॉस गैप्स बिटवीन न्यूरॉन्स। और न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो एक केमिकल्स होते हैं जो कि उनको उस सिग्नल्स को कैरी करते हैं और उस गैप जो सिनेप्सिस नाम का जो गैप है उसके थ्रू पास कराते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन्स में। दिस प्रोसेस अलाउज आवर नर्वस सिस्टम टू कोऑर्डिनेट responses, कंट्रोल बॉडी फंक्शंस एंड सपोर्ट कॉम्प्लेक्स थॉट्स एंड इमोशंस। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं, बॉडी को कंट्रोल करता है, जो थॉट्स एंड इमोशंस होते हैं कॉम्प्लेक्स उनको सपोर्ट करता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं नर्व कंडक्शंस के फंक्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो बेसिकली हमको यही पढ़ना था कि कैसे जो नर्व इम्पल्स होता है वो कैसे ट्रैवल करता है, हमने बस उसका पाथ पढ़ा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके बाद आई विल प्रोवाइड सम वेज टू कनेक्ट विद यू। तो ये नोट्स बेसिकली एमएससी के नोट्स हैं और प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाई हुई हैं। आगे के जितने भी टॉपिक्स आएंगे तो उसमें जूलॉजी में थर्ड सेमेस्टर की नोट्स हैं, ये बेसिकली थर्ड सेमेस्टर के पेपर 1 की नोट्स हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।